Assalamu alaikum student. Welcome to another lecture of Environment and Engineering. First we will go through the review of the last lecture. So in the last lecture we have discussed the water treatment process, which is known as filtration process. We discussed the process of the filtration कि किस तरीके से water जो है वो through different filter media हम pass करते हैं और उसको हम treat करते हैं. Then we discussed different types of filtration process, in which we include we have discussed the process of slow sand filtration process, and we discussed the rapid sand filter, and we also discussed their design criteria, and then we have done some numericals related to the design of slow sand filtration and the rapid sand filtration plant. So in today's lecture we will discuss the disinfection process, which is the last stage where we apply the disinfecting agent to kill the microorganisms. जो डिसइंफेक्शन प्रोसेस है वो बेसिकली डिपेंड करता है आपके यूज़ ऑफ द वाटर. ठीक है, अगर आपने वाटर को आफ्टर ट्रीटमेंट किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना है जिसके लिए आपको पैथोजेंस रिमूवल इज़ नॉट द standard or the criteria, so then you can omit, or it's an optional treatment process. लेकिन अगर हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, so we will make sure कि जो भी वाटर हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं should be free from all the pathogens and bacteria. So as we know that the conventional surface water treatment, the first water is entered in the rapid mix system, which is also known as coagulation process. Then from the rapid mix, the water is sent to a slow mixing process where the particles are allowed to form a bigger particles than a flock. That process is known as flocculation. So after flocculation, the water is sent to a segmentation chamber where the bigger flocks which were formed in the previous process will be allowed to settle down under the force of gravity. So in segmentation process, the particles will settle down at the bottom of the tank, and the clear water will be will pass to another treatment option, because in segmentation process only the particles which have bigger size, which can settle down under the force of gravity, will remove from the water, whereas the small suspended particles or colloidal particles will remain suspended in the water. So to remove those particles, or to purify the quality of the water is passed through a filtration process. So in filtration process, as we discussed, that we have two different types of filtration process, that's it, a rapid sand filtration process and a slow sand filtration process. So we will pass the water from the filter media, and it will retain the solid particles, and the clear water will be collected at the bottom of the filtration plant. So if the water is used for a drinking purposes, so हमें इसकी quality को और enhance करना है, and we have to kill the pathogens present in the water. Although बहुत सारे microorganisms या bacteria जो हैं वो during the process ख़त्म हो जाते हैं. Up to 98 to 99% process जो है, जब आप water को different processes से pass करते हैं, like coagulation, flocculation और segmentation और filtration process से, वो microorganisms removed हो जाते हैं. But we have certain फिर भी थोड़े 1 to 2% microorganisms जो हैं वो present होते हैं. So for drinking purpose we have to clear the water. So उस purpose के लिए हम disinfection का प्रोसेस जो है वो अप्लाई करते हैं. अगर आपने वाटर किसी और पर्पसेस के लिए यूज़ करना है, जिसके लिए जो आपका डिज़ाइन स्टैंडर्ड या क्राइटेरियाज जो हैं वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं, बट फॉर द ड्रिंकिंग वाटर पर्पस वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रिगार्डिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द डिजीज़ काजिंग pathogens. So disinfection process is basically the destruction of disease causing microorganisms, जिसे हम pathogens कहते हैं. ठीक है, so pathogens basically वो microorganisms होते हैं जिनके पास capacity होती है कि वो different disease जो हैं waterborne diseases cause कर सकते हैं in the women being. अच्छा जी, आपने डिसइंफेक्शन के अलावा एक और लफ्ज़ भी हम जो है वो डिस्कस करते हैं, दैट इज़ अ स्टेरिलाइजेशन. ठीक है, जो कि आप देखा होगा लैब में हम परफॉर्म करते हैं जब भी कोई एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के काउंट्स के लिए हम परफॉर्म करते हैं, वी स्टेरिलाइज आवर इक्विपमेंट्स. ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन इज़ बेसिकली द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेदर डिजीज़ काजिंग और नॉट. ठीक है,
अब जबकि डिसइंफेक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है टू काज द डिजीज़ इन द ह्यूमन बींग्स, वेयर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में तमाम तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहे वो डिजीज़ काज करने वाले हों या ना हो वो रिमूव हो जाते हैं और या वो किल्ड हो जाते हैं इन द वाटर और इन एनी अदर जिसके लिए आप परफॉर्म करते हैं. Methods of disinfection. There are three different types of disinfection method is available. The first one is a physical method, second one is a chemical method, and third one is a mechanical method. ठीक है, so फिज़िकल मेथड में आपके पास हीट, सनलाइट या यूवी रेज आ जाती हैं. सिंपल आप वाटर को लें और आप अगर इसको हीट कर दें यानी बॉयल कर दें वाटर को, जो जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो किल हो जाएंगे. सेकेंडली, इफ़ यू फिल द वाटर बॉटल एंड कीप इन अ सन रे अंडर द सन रेज, तो आफ्टर 2 आवर्स और 3 आवर्स आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे वाटर में वो किल हो जाएंगे. सेकेंडली, यू विल आल्सो किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय पासिंग यूवी रेज थ्रू द water sample. Secondly, the other method is a chemical method in which we will use different chemical agents to kill the माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जैसे कि क्लोरीन आपने सुना होगा हम वाटर में ऐड करते हैं टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आयोडीन, ओजोन एंड ब्रोमीन एसेट्रा, बहुत सारे केमिकल्स एज अ डिसइंफेक्टिंग एजेंट जो है वो यूज होते हैं. थर्ड मेथड हमारे पास है मैकेनिकल मेथड. मैकेनिकल मेथड जैसे कि मैं आपको पहले पिछली स्लाइड्स में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट प्रोसेस, कोगुलेशन, फ्लोकुएशन एंड सेगमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस, मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिमूव्ड. 98 to 99% of bacteria are removed by using these mechanical methods. So जो most commonly disinfection process हम use करते हैं for the water supply, that is a chlorination. So chlorination is basically a process in which we apply a chlorine in the water and kill the microorganisms. ठीक है, so it's the most commonly used method of disinfection for the public water supply. Simply adding the chlorine in chlorine को हम add करते हैं in different forms of the chlorine will be added in the water to kill the microorganisms, and this process is known as chlorination. Why it is most commonly used? So chlorination को हम क्यों commonly use करते हैं? Because there are other also method या different chemicals और भी available हैं जो कि as a disinfectant agent use हो सकते हैं, लेकिन हम chlorine और chlorine compounds को क्यों use करते हैं for the disinfection purposes in water supply schemes? The first reason is that this that the chlorine और इसके जो available compounds होते हैं they are cheap. ठीक है, एंड बिकॉज वाटर सप्लाई आपको पता है कि बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर यू हैव टू आपने बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को क्लियर आउट करना है फ्रॉम द पैथोजेंस, सो यू रिक्वायर्ड लाइक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द केमिकल. सो क्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड्स आर अवेलेबल cheap as compared to other disinfecting agent. Second reason is second reason of using the chlorine as a disinfecting agent is that it is more reliable, and the third one is they have no difficulty in handling these chemicals. दूसरे जितने भी chemicals हैं उनको handling के different procedures or you have to be very careful for handling those disinfecting agent, but chlorine can be easily handled while using it as a disinfecting agent. अच्छा जी, नाउ वी डिस्कस के क्लोरीन को हम डिफरेंट फॉर्म्स के लिए यूज़ करते हैं डिसइंफेक्शन प्रोसेस. सो जो क्लोरीन को हम डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करते हैं तो उनकी जो डिफरेंट रिएक्टिविटी होगी या डिफरेंट किलिंग पावर ऑफ बैक्टीरिया will be available. So we will discuss that different types of chlorine which is used for the disinfecting purpose in the water supply. The first one is a chlorine gas. So basically we use a chlorine gas. When we add chlorine gas in the water, it will form a hypochlorous acid. Hypochlorous acid and hydrogen ions and Cl chloride ions. सो नॉर्मली जो आपका डिसइंफेक्शन का प्रोसेस है दैट इज़ ड्यू टू द हाइपोक्लोरिक क्लोरस एसिड. ठीक है, जब आप क्लोरीन गैस को ऐड करते हैं
वाटर के अंदर, तो जो उसका बाय प्रोडक्ट बनता है दैट इज हाइपोक्लोरिक एसिड. Hypochlorous acid is basically a disinfecting agent and it is a reactive to kill the bacteria which is found in the water. क्योंकि हमारे पास जो बैक्टीरियाज अवेलेबल होते हैं दैट इज बेसिकली दैट आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. सो हाइपोक्लोरिक एसिड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ द क्लोरीन. The second form which is used to disinfect the microorganisms, that is calcium hypochlorate ion, ClCl2, which contain 40 to 50% of available chlorine that can be obtained either in powder or in liquid form. So from the research it is clear that the hypochlorate acid and any type of hypochlorate ion which carry out disinfection, hypochloric acid is 80 to 100 times more effective than other form of hypochlorate ions. ठीक है, चाहे आप कैल्शियम हाइपोक्लोरेट यूज़ कर लें या सोडियम हाइपोक्लोरेट कर लें, सबसे ज़्यादा 80 to 100 टाइम्स रिएक्टिव है आपका हाइपोक्लोरिक एसिड. ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोरेट आयन कंटेन्स 12 to 50% अवेलेबल क्लोरीन एंड इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. फोर्थ वन हमारे पास आता है दैट इज़ अ क्लोरिनेटेड लाइम which contain about 30 to 35% of available chlorine. Disadvantage is that it loses its chlorine content while storage. ठीक है, क्लोरिनेटेड लाइम का ये कि जब आप इसको आपको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, बिकॉज इफ़ यू अगर आप बोतल को ओपन रखेंगे इट विल लूज इट्स क्लोरीन वेरी सून ड्यूरिंग द स्टोरेज. सो यू कैन नॉट स्टोर क्लोरिनेटेड लाइम. ठीक है, क्योंकि उसमें जितनी भी अवेलेबल क्लोरीन है वो जो है वो इवेपोरेट हो जाती है इन द एटमॉस्फेयर. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग using the hypochlorite ion. As I discuss all of these four, जो आपका सबसे reactive disinfectant agent है that is a hypochlorous acid. मैकेनिज़्म ऑफ डिसइंफेक्शन, अब तक जो है जो मैकेनिज़्म है डिसइंफेक्शन का कि किस तरीके से केमिकल जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को एंड किल द बैक्टीरिया, वो बेसिकली अनसर्टेन है. ठीक है, लेकिन ये कहा जाता है कि नॉर्मली जो भी आपके केमिकल्स हैं वो एंटर होते हैं थ्रू द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया और वहाँ पर जाकर सेल वॉल से एंटर होकर उनके एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं और उनके न्यूक्लियस को अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है वो बैक्टीरिया जो की डेथ हो जाती है. सो द मैकेनिज्म ऑफ डिसइंफेक्शन इज़ अनसर्टेन बट इट इज़ सस्पेक्टेड दैट इट किल्स द पैथोजेंस बाय एंटरिंग थ्रू सेल वॉल्स ऑफ बैक्टीरिया. Then it disrupts the enzymes activity and attacks the nucleus and causing the death of the bacteria or the pathogens which are present in the water. So next we will discuss the form of chlorine in water कि water में आपकी जो chlorine है वो किस किस form में available होती है. The first one is a free available chlorine. So free available chlorine basically exist. Free available chlorine वो होती है जो कि आपके पास आप क्लोरीन गैस को ऐड करते हो वाटर में and then you will get hypochlorite, chlorous acid और chloride ions of any salt. ठीक है, so chlorine existing in water as a hypochlorous acid or hypochlorate or molecular chlorine is defined as free available chlorine. ठीक है, मीन्स कि वो अवेलेबल क्लोरीन प्रेजेंट हो. सेकंड हमारे पास आती है कंबाइंड अवेलेबल क्लोरीन. कंबाइंड अवेलेबल क्लोरीन इज़ दैट कि वो किसी और कंपाउंड के साथ कंबाइंड होकर प्रेजेंट हो, जैसे कि हमारे पास मोनोक्लोरोमाइन है यानी अमोनियम के साथ क्लोराइड के आइंस हैं, डाइक्लोरोमाइन है और ट्राइक्लोरोअमाइन है. तो दीज आर नोन एज कंबाइंड अवेलेबल क्लोरीन. So you should note that कि जो combined available chlorine है that is less reactive as compared to free available chlorine. So combined available chlorine, ammonium contain compounds are available in water, so chlorine will react with it to form the compound. ठीक है, जो भी आपके पास एक्चुअली वाटर में अमोनियम प्रेजेंट होती है, जब आप उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं इट विल कंबाइन with the chloride ion and form different forms of chloride, different kinds of chloroamines.
ठीक है, जैसे कि अमोनियम ऐड किया आपने, हाइपोक्लोरिक एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट इन द वाटर, बिकॉज व्हेन यू ऐड क्लोरीन इन द वाटर इट विल कन्वर्ट इनटू हाइपोक्लोरिक एसिड, दैट अमोनिया विल रिएक्ट विद एन हाइपोक्लोरिक एसिड एंड विल फॉर्म अ मोनोक्लोरोमाइन। ठीक है, मोनोक्लोरोमाइन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, सो इट इज मोनो। ठीक है, then that monochloroamine will further react with the hypochlorous acid and it will combine with other chloride ion and form a dichloroamine। ठीक है, Cl2 फॉर्म करेगा, और वही Cl2 अगर आप स्टोरेज के दौरान प्रेजेंट रखेंगे तो फर्दर वो हाइपोक्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करके थर्ड क्लोराइन आयन के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपके अमोनियम आयन है उसके ऊपर +3 चार्ज होते हैं, यानी इसके पास 3 साइड्स होते हैं टू कंबाइन द ऑपोजिट 3 नेगेटिव आयन्स विद इट। ठीक है, इसलिए आपके पास जो है वो एंड पे जो बनेगा वो ट्राइक्लोरोअमाइन प्रेजेंट होगा। तो नेक्स्ट जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है दैट इज़ अ ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। अब ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन बेसिकली क्या होती है? So break point chlorination is the chlorination of the water to the extent that an ammonium present in water is converted to trichloramine or oxidized to free NO2 or other gases is known as break point chlorination। आपको अगर सिंपल वर्ड्स में समझाया जाए, सो सिंपली जब आप क्लोरीन को वाटर में ऐड करते हैं, सो वाटर विल हैव ऑलरेडी कंटेन अमोनियम। जब तक वो अमोनियम आपके पास कन्वर्ट ना हो जाए ट्राई अमाइन, ठीक है, उस पॉइंट तक हम उसको, वो हमारे पास जो पॉइंट होता है दैट इज़ अ ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, जिसमें हमारे पास तमाम अमोनिया जो है वो ट्राई अमाइन क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाती है। सो अगर हम ब्रेक पॉइंट के बाद जाएंगे तो जितनी भी हमारे पास वाटर होगी, वाटर में जो क्लोरीन अवेलेबल होगी दैट इज़ अ फ्री अवेलेबल क्लोरीन। मीन्स ये कि अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में कहें तो जितनी भी वाटर में हमारे पास कंबाइन अवेलेबल क्लोरीन है, जब तक कि वो फ्री अवेलेबल क्लोरीन में कन्वर्ट ना हो जाए, या वो पॉइंट जहाँ पर तमाम कंबाइन क्लोरीन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्री अवेलेबल क्लोरीन में, दैट पॉइंट इज़ नोन एज ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। ठीक है, जैसे कि आप ग्राफ में भी देख रहे हैं कि हमारे पास ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन है, जहाँ पर हमारे पास तमाम अमोनियम जो वाटर में प्रेजेंट थी वो ट्राइक्लोरोअमाइन में कन्वर्ट हुई और इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ द क्लोरीन विच भी जब हम क्लोरीन को इस पॉइंट के बाद ऐड करेंगे तो वो क्लोरीन जो है वो हमारे पास वाटर में फ्री अवेलेबल क्लोरीन की फॉर्म में अवेलेबल होगी। उसके बाद हमने एक टर्म डिस्कस करनी है दैट इज़ अ रेजिड्यूल क्लोरीन। रेजिड्यूल क्लोरीन बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिस्कस करूँ, जब आप पानी में क्लोरीन ऐड करते हैं, कुछ पोर्शन ऑफ द क्लोरीन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करेंगे, ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए यूज़ हो जाएगा। सो जो एंड पे क्लोरीन बचेगी आफ्टर किलिंग द बैक्टीरिया, दैट जो क्लोरीन बचती है उसको हम रेजिड्यूल क्लोरीन कहते हैं। So it is the amount of chlorine no matter whether it is combined or fresh state। ठीक है, ये combined available chlorine हो या free available chlorine हो, present in a given sample after a specific period of time, it is known as residual chlorine and it is measured in milligrams per liter। क्लोरीन डिमांड बेसिकली हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? क्लोरीन डिमांड हम कैलकुलेट करते हैं, क्लोरीन डिमांड का बेसिकली मतलब ये है कि आपने कितनी क्लोरीन आपको रिक्वायर्ड है टू मेक द वाटर फ्री फ्रॉम पैथोजेंस। ठीक है, सो इसका सिंपल सा फार्मूला है कि आपने जितनी क्लोरीन अप्लाई की, ठीक है, टोटल अमाउंट आपने कितनी अप्लाई की माइनस कितनी क्लोरीन रह गई, ठीक है, वही आपकी जो आपका क्लोरीन यूज़ होगा टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ बेसिकली योर क्लोरीन डिमांड। ठीक है, सो जितनी आपने क्लोरीन, फॉर एग्जांपल आपने 100 मिलीग्राम्स पर लीटर आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए क्लोरीन अप्लाइड की, और जो रेजिडुअल क्लोरीन आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम लाइक 30 मिनट्स और 15 मिनट्स के बाद जब आपने क्लोरीन मेजर की तो आपके पास वाटर में 20 मिलीग्राम्स पर लीटर अवेलेबल थी, तो हमारे पास क्लोरीन की डिमांड क्या हो जाएगी? 80 मिलीग्राम्स पर लीटर। यानी कि आपकी जो वाटर की क्लोरीन डिमांड थी वो ये थी कि आपको 80 मिलीग्राम पर लीटर रिक्वायर्ड था टू किल ऑल द पैथोजेंस प्रेजेंट इन योर वाटर सैंपल। अब जी क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोरिनेशन प्रोसेस, हम
क्लोरीनेशन को हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड द एंड रिजल्ट. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मीन्स कि हम किस प्रोसेस यानी ट्रीटमेंट के किस स्टेज के ऊपर क्लोरीनेशन को अप्लाई करते हैं. ठीक है, सो उसके ऊपर डिपेंड करता है क्लारिफिकेशन. ठीक है, सो ट्रीटमेंट से पहले भी क्लोरीनेशन की जाती है या डिसइंफेक्शन की जाती है, आफ्टर द ट्रीटमेंट भी डिसइंफेक्शन की जाती है. सो जो क्लोरीनेशन जो है बेसिकली प्री क्लोरीनेशन होता है, हमारे पास पोस्ट क्लोरीनेशन होता है. इसके अलावा हमारे पास प्लेन क्लोरीनेशन भी होता है. द फर्स्ट वन, इफ द वाटर इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड मैटर, क्लोरीनेशन कैन बी डन. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ग्राउंड वाटर है. ग्राउंड वाटर में हम कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करते बिकॉज इट इज़ क्लियर, और इसमें जो हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है दैट इज़ अ डिसइंफेक्शन प्रोसेस बिफोर यूजिंग इट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस. सो उसको हम कहेंगे प्लेन क्लोरीनेशन. प्लेन क्लोरीनेशन में की कोई ट्रीटमेंट वाटर के लिए रिलेटिवली रिक्वायर्ड नहीं है. यू सिंपली रिक्वायर अ डिसइंफेक्शन प्रोसेस. सो यू अप्लाई अ क्लोरीनेशन, you apply a chlorine in the water, that is known as प्लेन क्लोरीनेशन. और नॉर्मली जो हम प्लेन क्लोरीनेशन के लिए क्लोरीन की डोज यूज़ करते हैं दैट इज़ 0.5 to 1 मिलीग्राम पर लीटर. क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ये कि अगर आपने प्लेन क्लोरीनेशन करनी है तो आपके पास जो रेजिडुअल क्लोरीन है वो 0.1 मिलीग्राम्स पर लीटर रहनी चाहिए वाटर में. अच्छा जी, रेजिडुअल क्लोरीन 0.1 मिलीग्राम्स पर लीटर कंज्यूमर एंड पे क्यों रहनी चाहिए? क्योंकि वो इसलिए कि ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन जब आप वाटर को सप्लाई करते हैं फ्रॉम द सोर्स टू द कंज्यूमर एंड, तो ड्यूरिंग दैट सप्लाई आपके पाइप्स में या कोई लीकेज हो सकती है, कुछ जिसम जो कंटेमिनेटेड या पैथोजेंस को ऐड कर सकती है. सो आपके वाटर में 0.1 मिलीग्राम्स पर लीटर क्लोरीन रेजिडुअल रहनी चाहिए कि ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम द सोर्स टू द कंज्यूमर एंड, अगर खुदा ना खास्ता कोई डिसइंफेक्ट कोई पैथोजन वगैरह एंटर होते हैं तो वो इजीली आपके डिसइंफेक्ट हो जाए. अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन आती है प्री क्लोरीनेशन. ठीक है, दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन टू रॉ वाटर बिफोर अप्लाइंग टू एनी अदर ट्रीटमेंट. ठीक है, जैसे प्री का मतलब है कि जो कोई भी ट्रीटमेंट से पहले आप क्लोरीनेशन करें, यानी आपने वाटर की कोगुलेशन, फ्लॉकुएशन, सेगमेंटेशन प्रोसेस से पहले आप जो है वो क्लोरीन ऐड कर देते हैं वाटर में. इसका एडवांटेज ये है कि इट इम्प्रूव द कोगुलेशन प्रोसेस दस रिड्यूसिंग द कोगुलेशन डोज. इसमें सिर्फ आपके पास क्या है कि जो बैक्टीरिया पहले रिमूव हो जाएंगे, सो आप इसके लिए आपको कोगुलेशन प्रोसेस के लिए जो कोगुलिन की डोज रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी रिड्यूस. सेकेंड वन, जब वो इतने लंबे प्रोसेस से पहुंचेगा सो कंज्यूमर एंड तक उसकी जितनी भी टेस्ट या ऑर्डर है प्रेजेंट वो वाटर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा. So depending upon the condition of raw water, dosage should be such that it gives the residual chlorine of 0.1 milligrams per liter. यानी आपने क्लोरीन इतनी ऐड करनी है कि आपके पास जो रेजिडुअल क्लोरीन है वो 0.1 मिलीग्राम्स पर लीटर एंड पे फिल्टर एंड के ऊपर बचनी चाहिए. थर्ड वन हमारे पास आती है पोस्ट क्लोरीनेशन. पोस्ट क्लोरीनेशन जो हम क्लोरीनेशन अप्लाई करते हैं आफ्टर ऑल द ट्रीटमेंट्स. ठीक है, जो कि नॉर्मली हम अप्लाई करते हैं कि आप ट्रीटमेंट के बाद जब हमने वाटर सप्लाई करना होता है कंज्यूमर एंड तक तो फिर हम क्लोरीनेशन अप्लाई करते हैं. सो इट रेफर्स टू द एडिशन ऑफ क्लोरीन टू वाटर आफ्टर ऑल द ट्रीटमेंट. सम सॉर्ट ऑफ रेजिडुअल इज आल्सो नीडेड इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम to fight against the contamination caused due to a cross contamination, to prevent the organic growth of the pipe as we discussed in the previous slides. नॉर्मली जो इसकी डोजेज हम अप्लाई करते हैं दैट इज़ 0.25 to 0.51 मिलीग्राम्स पर लीटर इन ऑर्डर टू obtain the residual of 0.1 to 0.2 milligrams per liter as a treated water leaves the plant. फोर्थ वन हमारे पास आ जाती है सुपर क्लोरीनेशन. सुपर क्लोरीनेशन इज बेसिकली इन ऑर्डर टू रिमूव द टेस्ट और ऑर्डर समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू सुपर क्लोरीनेट द वाटर टू ऑक्सीडाइज ऑल सच कंपाउंड्स. ठीक है, अगर आपने वाटर में से फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन की बहुत ज़्यादा टेस्ट और स्मेल आ रहा है, सो इन दैट पोर्शन वी अप्लाइड एक्स्ट्रा डोज ऑफ क्लोरीन टू remove or oxidize all the compounds present in the water which cause that taste and odor in the water. Dechlorination after superchlorination के बाद it is very necessary कि जितना भी क्लोरीन का extra amount है उसको आप remove करें. So the level of the chlorine in water is termed as dechlorination process. So dechlorination process हमारे पास two types के हो सकते हैं. First one is in aeration. We simply provide oxygen which will react with the
remaining chlorine present in the water and it will convert it into another form of the water जिसकी कोई taste और order नहीं होगा. Secondly, you can add some salt like a sodium thiosulfate and sodium bisulfate which will combine with the residual chlorine and it will remove that chlorine and precipitate out from the water. So now we will discuss some factors which are very important for the disinfection process. ठीक है. The first one is the time of content, यानी कितना आप टाइम देते हैं कि क्लोरीन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपस में रिएक्ट कर सके. सो इट्स सिंपल, जितना ज़्यादा टाइम आप क्लोरीन को रखेंगे वाटर के अंदर इट विल किल दैट मच मोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो मोर टाइम मोर विल बी द डिसइंफेक्शन प्रोसेस. सेकेंड वन इज़ द टाइप ऑफ रेजिड्यूल. फ्री अवेलेबल क्लोरीन जो भी है वो आपके पास 20 टाइम्स मोर इफेक्टिव होता है देन अ कंबाइन अवेलेबल क्लोरीन. मीन्स कि जो आपके पास रेजिडुअल क्लोरीन है वो किस फॉर्म में आती है, वो फ्री है या अवेलेबल है. अगर वो फ्री में बचती है तो फिर तो 20 टाइम्स ज़्यादा अच्छा डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस यानी ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सोर्स टू द कंज्यूमर एंड वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है. लेकिन अगर आपके पास जो है वो रेजिडुअल क्लोरीन कंबाइंड अवेलेबल क्लोरीन की फॉर्म में होता है तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम होगी एज कम्पेयर टू अ फ्री अवेलेबल क्लोरीन. द थर्ड पैरामीटर इज़ अ टर्बिडिटी. सो ग्रेटर इज़ अ टर्बिडिटी. जितनी ज़्यादा टर्बिडिटी वाटर में होगी आपका डिसइंफेक्शन प्रोसेस उतना ही स्लो होगा, यानी जितना गंदा पानी होगा उसका डिसइंफेक्टेंट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना मुश्किल होगा. पीएच जो है वो क्या है, बेसिकली पीएच आपके पास आ जाता है at low pH chlorine is more effective. ठीक है, almost 150 times more dosage required at pH 10 than that of the pH 5. कहा जाता है कि जितना कम pH होगा आपकी क्लोरीनेशन या डिसइंफेक्शन प्रोसेस ज़्यादा बेहतर होगा एज कम्पेयर टू द pH हाई है. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. इसका रीज़न ये है कि लो पीएच के ऊपर हाइपोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है. जैसे कि हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाइपोक्लोरिक एसिड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अदर डिसइंफेक्टेंट एजेंट. So at low pH, hypochlorous acid is produced and it is more effective than hypochlorite ion because bacteria cell wall is negatively charged. So negatively charged species will be repelled by a cell wall. That is why hypochloric acid is much more effective than hypochlorite ions. Number 5 is the temperature. Disinfection is more effective at higher temperature, like at 35 to 40 Fahrenheit. Chlorine is half effective as compared to that of 70 and 75 Fahrenheit. Amount of organic matter present in water will be oxidized by chlorine, so we require excessive amount of chlorine for disinfection if any organic matter is present in your water. Types of organic matter, basically for viruses it is not effective, but if the bacteria is concerned the type of the organic matter is very effective because क्योंकि bacteria जो है वो organic matter को as a food use करता है. So you will provide that type of the organic matter which will easily decomposed or eatable by the bacteria. So now we will perform some numericals in which we will calculate the chlorine dosage, कितनी chlorine हमें required है और कितना chlorine demand है. So इससे related हम different types के numericals जो हैं वो perform करेंगे. So let's start with the first numerical, that is the chlorine demand of a secondary effluent is 8.7 milligrams per liter and the desired residual is 0.8 milligrams per liter. If the daily plant flow is 7000 meter cube per day and the calcium hypochlorite dose of 2000 kg, तो आपने calculate करना है the percentage of available chlorine of hypochlorite solution. So in simple words you have to calculate the percent of chlorine present in calcium hypochlorite ion. ठीक है, means के 2000 kg में कितना chlorine, 2000 में से कितना chlorine जो है वो आपने कितना क्लोरीन अवेलेबल है या कितना क्लोरीन, कितनी अमाउंट ऑफ क्लोरीन जो है वो प्रेजेंट है, यानी 200 केजीज में कितना केजीज क्लोरीन है. सो आपके पास क्लोरीन डिमांड गिवन है, रेजिडुअल क्लोरीन गिवन है, आपके पास फ्लो गिवन है और आपके पास डोजेज गिवन है. ठीक है, सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है क्लोरीन अप्लाइड. सो वी विल यूज द फार्मूला दैट इज क्लोरीन डिमांड इज इक्वल टू क्लोरीन रेजिडुअल माइनस क्लोरीन अप्लाइड.
सॉरी, फार्मूला थोड़ा सा गलत हो गया है। क्लोरीन डिमांड दैट इज़ इक्वल टू अप्लाइड क्लोरीन माइनस रेजिडुअल क्लोरीन, ठीक है। सो इसमें आपने क्लोरीन डिमांड पुट करनी है, दैट इज़ 8.75 एंड यू विल ऐड 0.8, सो आप अप्लाइड क्लोरीन फाइंड आउट कर लेंगे। सो जो आपके पास डोज होगी, जो क्लोरीन आपने अप्लाइड करनी है मिली पर लीटर, वो आपने कैलकुलेट की, दैट इज़ 9.5 मिलीग्राम्स पर लीटर, ठीक है। यानी आपने पर लीटर जो है वो 9.5 मिलीग्राम्स आपने ऐड करनी है। अब आपके पास जो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लो है, या आप समझ लें कितना लीटर पानी को आपने ट्रीट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने आप क्लोरीन की डोज रिक्वायर्ड फाइंड आउट करनी है। बेसिकली हमने ये फाइंड आउट करना है कि जो भी तुम्हारे पास जितना अमाउंट ऑफ वाटर ना, उसके लिए हमें कितनी क्लोरीन रिक्वायर्ड होगी टू किल द वाटर, टू किल द पैथोजेंस, ठीक है। सो हमने पहले ये फाइंड आउट कर लिया है कि पर लीटर हमें कितनी क्लोरीन रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। सो हमने देखा है कि 9.5 मिलीग्राम्स पर मिलीग्राम्स आपको पर लीटर जो है वो क्लोरीन अप्लाइड है। सो नाउ वी विल सिंपली डू सम यूनिट कन्वर्जेंस, ठीक है। अब आपने देखा है कि आपके पास जो सॉल्ट है वो प्रेजेंट है 200 kgs में, और हमारे पास फ्लो जो है वो 7000 मीटर क्यूब पर डे है, ठीक है। 1 लीटर के पानी के लिए हमारे पास 9.5 मिलीग्राम्स क्लोरीन ज़रूरी है, तो 7000 के लिए कितनी होगी वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। क्योंकि ये kgs में है, सो वी विल सिंपली कन्वर्ट ऑल द यूनिट्स इन kg. So amount of chlorine required per day, that is equal to 9.5 into 7000 divided by 1000, that is equal to 66.5 kg per day as chlorine. Means कि अगर हमने 7000 मीटर क्यूब पर डे ट्रीट करना है फ्लो को, तो हमें डेली जो है वो 66.5 kg क्लोरीन रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। और हमारे पास टोटल जो है वो जो सॉल्ट प्रेजेंट है वो हमारे पास 200 kgs है, ठीक है। सो अब हमने ये देखना है कि अब हमारे पास 200 kgs में कितनी क्लोरीन अवेलेबल होगी। सो हमें रिक्वायर्ड कितनी है, दैट इज़ 66.5, उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल अमाउंट ऑफ द सॉल्ट जो कि प्रेजेंट है, दैट इज़ 200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आ जाएगी परसेंट ऑफ क्लोरीन। सो 33.25% ऑफ अवेलेबल फ्री क्लोरीन। मीन्स ये कि अगर आप 200 kg कैल्शियम हाइपोक्लोरेट का यूज़ करेंगे तो उसमें आपके पास 33.25% क्लोरीन अवेलेबल होगा। मीन्स के 200 kg का आप 33.25% लेंगे तो उतना अमाउंट ऑफ क्लोरीन जो है वो आपके पास प्रेजेंट होगा टू ट्रीट द 7000 मीटर क्यूब पर डे ऑफ द फ्लो। सो नाउ वी विल डू सेकेंड न्यूमेरिकल। हमारे पास है द chlorine demand of the water under given condition is 7 milligrams per liter as chlorine after a contact period of 30 minutes. Calculate the amount of calcium hypochlorite with 70% of available chlorine to treat the 30,000 meter cube per day of the water so that the free residual chlorine is 0.2 milligrams per liter, ठीक है। आपके पास क्लोरीन डिमांड गिवन है, दैट इज़ 7 मिलीग्राम्स पर लीटर। आपको कहा गया है कि 70% आपके पास अवेलेबल क्लोरीन है। फ्लो आपके पास 30,000 मीटर क्यूब पर डे है। रेजिडुअल क्लोरीन 0.2 मिलीग्राम्स पर लीटर है, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप क्लोरीन अप्लाइड फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ 0.2 प्लस 7.2 मिलीग्राम्स पर लीटर। क्लोरीन रिक्वायर्ड पर डे आपने कितनी कैलकुलेट करनी है, जैसे कि हमने पीछे न्यूमेरिकल किया, सिमिलर वही है। सो आपने जो आपके पास फ्लो है उसके साथ आपने क्लोरीन जो आपने अप्लाई की है उसको आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपको पता चला है कि पर डे आपको अगर 30,000 मीटर क्यूब पानी को ट्रीट करना है तो आपको डेली जो है वो 216 kg पर डे सॉल्ट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब से सॉल्ट रिक्वायर्ड होगा। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द, ठीक है। ये तो हमें पता है कि हमें क्लोरीन 216 kg पर डे रिक्वायर्ड है, बट नाउ वी हैव टू फाइंड कि हमें कैल्शियम हाइपोक्लोरेट कितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। हमें तो ये पता चल गया है कि इतना हमें क्लोरीन चाहिए। अब इतना क्लोरीन के लिए हमें कितना सॉल्ट ऐड करें तो हमें इतना क्लोरीन अवेलेबल हो वाटर में फॉर द पैथोजेंस। सो उस पर्पज़ के लिए अगर आप देखेंगे तो हाइपोक्लोरेट आयन का जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज़ 143 kg, ठीक है। और उसमें अगर आप
हाइपोक्लोराइट का मॉलिक्यूलर वेट निकालें, सो दैट इज़ 71 kg क्लोरीन। सो अगर हम देखें तो कैल्शियम हाइपोक्लोरेट में हमारे पास 71 kg क्लोरीन अवेलेबल है, Cl2। देखो Cl का मॉलिक्यूलर वेट 35.5 होता है, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 71 kg। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि 71 kg क्लोरीन अवेलेबल इन 143 kg ऑफ हाइपोक्लोरेट सॉल्ट। ठीक है, और अगर हमारे पास 261 kg क्लोरीन रिक्वायर्ड हो तो हमारे पास कितना हाइपोक्लोराइड आयन होगा। सो 143 डिवाइडेड बाय 71 मल्टीप्लाई बाय 216 इट इज़ इक्वल टू 435 kg ऑफ क्लोराइड आयन। सो अगर आपको 216 kg ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड है तो आपको 435 kg ऑफ हाइपोक्लोरस क्लोरेट सॉरी कैल्शियम हाइपोक्लोरेट जो है वो ऐड करना पड़ेगा वाटर में। ठीक है, सो दिस इज़ अ सिमिलर न्यूमेरिकल जैसे कि हमने प्रीवियस वन किया था। थोड़ा सा इसमें जो यूनिट थोड़ा सा इसमें ये कि लास्ट न्यूमेरिकल में आपको उन्होंने 200 kg गिवन था, लेकिन इसमें आपको 200 kg गिवन नहीं है, यानी उसमें आपको सॉल्ट की अमाउंट गिवन थी। इस न्यूमेरिकल में आपको सॉल्ट की अमाउंट नहीं गिवन जो आपने फाइंड आउट करनी है। सो थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास आता है द क्लोरिनेशन डिमांड फॉर द वाटर हैज़ बीन डिटरमाइंड टू बी 1.2 मिलीग्राम्स पर लीटर आफ्टर द कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ 30 मिनट्स। कैलकुलेट द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोराइड आयन टू डिसइंफेक्ट 5000 मीटर क्यूब पर डे ऑफ द वाटर। सो इट्स अ सिमिलर वन, जैसे हमने लास्ट टू न्यूमेरिकल्स किए हैं उसी तरीके से ये न्यूमेरिकल भी परफॉर्म्ड होगा। ओके।